Good morning to all of you. Now we are going to discuss here simple present tense first. Okay, as we have spoken here, we are going to discuss tenses. How can we use it in day-to-day life, right? So I told you 5 tenses are very much important. What is that? Simple present tense, then present continuous tense, then present perfect tense, then simple past tense, and then simple future tense. Okay. So first of all, let's take the example of simple present tense. Okay. So come on, everyone, look at here. Simple present tense. First of all, you need to understand here. How will you understand if simple present tense? आप कैसे समझोगे कि simple present tense है? Okay? देखो, आप यहाँ पे जनरली अभी तक आपने ये डिस्कस किया होगा या आपको बताया गया होगा कि सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी ता है ती है तिस्ते हैं एक्सेट्रा हैज बीन गिवन. ओके, समटाइम्स जनरली इट इज गिवन बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स नॉट अ लॉ कि वो रहेगा तो ही सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. दोस्तों, आप इसके ऊपर न जाकर के आप कंडीशंस के ऊपर जाओ. अगर आपको सेंटेंस में 3 प्रकार की कंडीशंस मिल रही है, सिचुएशन मिल रही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. पहला सिचुएशन है व्हेन यू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन. व्हेन यू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शन. The second situation is that when you talk about universal truth. जब आप universal truth की बात करेंगे तब आपका simple present tense होगा. और third, when you talk about habitual action, universal truth, and when you talk about daily routine, the third condition will be there when you will talk about daily routine. And next condition will be also one more here. When you talk about when you give the commentary of a cricket match. जब आप क्रिकेट मैच की कॉमेंट्री देखते हो या आप देते हो उस टाइम में भी टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. और जो भी कार्य आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे. देखो, आप यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे टेंस के फॉर्म में समझ रहे हैं. तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम. व्हाट टेंस इज व्हाट? इट इंडिकेट्स टाइम. माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट मी. व्हाट इज हियर? यू नो व्हाट? जस्ट अंडरस्टैंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन सच एस्पेक्ट. Present is what? Present is here at the present on your head. What is past? At the back. Back means when at the back. Okay, at your back. Consider past is at your back and future is in front of you. It is in front of you. It is always open for you to prosper much more. Okay. So first of all, we are discussing here present tense, and here I gave you 3-4 conditions. First, when you talk about daily routine. Second, when you talk about habitual action. अब देखो daily routine का example ले लो. Daily I get up early in the morning at 5 a.m. Daily I get up early in the morning at 6 a.m. So it is what? This is simple present tense. And now habitual action. My mother takes hot coffee every morning. मेरी माँ हर सुबह गर्म कॉफी पीती है. What is this? This is habitual action. And one more you can take the example of universal truth. The sun rises in the east and sets in the west. सूर्य पूरब में उगता और पश्चिम में अस्त होता है. तो universal truth. I and you can't change it. This was यूनिवर्सल ट्रुथ फ्रॉम मी. एंड यू नो व्हाट यू मीन बाय यूनिवर्सल ट्रुथ? जो आज सत्य था, कल सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा या आने वाले समय में भी सत्य रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ understand here what will be the formula, what will be the rule to frame the fundamental. And one more thing, my dear friends, understand, you know, if you will understand only simple present tense now, then even I will tell you 60 to 70% English you will speak correct. अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझ लिया तो आपको 60 to 70% इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से करेक्ट बोलने आ जाएगी. और इसके साथ में थोड़े से आपको हेल्पिंग वर्ब्स को जानने की जरूरत है. हेल्पिंग वर्ब क्या? प्रेजेंट में आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होगी, इज, एम, आर यूज होगा, हैज, हैव यूज होगा. तो इज, एम, आर आपको पता है. ही, शी, इट, नेम के साथ हम इज यूज करते हैं. विल, दे के साथ हम आर यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ में. और आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं. हैज हैव का यूज पोजीशन और ओनरशिप की जब बात होती है तो हम हैज हैव या हैज गॉट और हैव गॉट का यूज करते हैं. तो इसमें जो है आई, यू, दे के साथ आप हैव या हैव गॉट यूज करते हो और ही, शी, इट, नेम के बाद आप हैज या हैज गॉट यूज करते हो. तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना जान लो अगर आप, और अगर यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को जान लो और थोड़े से आपको मेन वर्ब्स मालूम हो तो आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाता है. अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, अभी मैं आपको इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि कैसे आप ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर में करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वन मोर थिंग, अभी आप बोलोगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव. मैं बोलती हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में बहुत ज़्यादा बॉदर मत करो. सारे के नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं आपको एक साथ में कराना सिखा दूंगी और एक बार आपको जब सबके हेल्पिंग वर्ब्स मालूम हो जाएंगे तो आप हर एक स्ट्रक्चर का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख लोगे. दूसरी बात,
आप ये हमेशा ध्यान दो कि जब आप किसी से बात करते हो तो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हो, पॉजिटिव में बात करते हो। और अगर आप नेगेटिव में बात करोगे तो एक बात बताओ, आपको अच्छा लगता है आप किसी को कुछ बोलो और सामने वाला आपको ना बोले, आपका काम नहीं करेगा या वो आपसे वो कम्युनिकेट नहीं करेगा या वो आपके साथ नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? जब भी आप किसी को नकारते हो या ना बोलते हो तो उस केस में सामने वाले को बुरा लगता है, नहीं आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपको ये लगता है इसने मुझे ना कैसे बोला, इसने मुझे ना कैसे बोला। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसा लगता है? क्वेश्चन पूछने पे भी आपको बुरा लगता है, अरे इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे क्वेश्चन करता है। अब देखो मैटर ये है, तो हम ज्यादा कम, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, वी वेलकम दैट, वी डू नॉट वेलकम negative sentences, we do not welcome interrogative sentences. All right, so let's start now. See, first of all we are going to discuss here positive sentences in simple present tense. Positive sentences को हम कैसे simple present tense में use करेंगे? देखो पहले आप हमेशा ये ध्यान दो, we are going to discuss here first of all positive sentences, okay? In positive sentences with I, we, you and they, you need to use V1 plus S और ES और IES, राइट? आपको इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको I VU दे के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S ES या IES यूज करना है, ओके? अब आप बोलोगे कहाँ पे S करना है, कहाँ पे ES, कहाँ पे IES, उसके कुछ रूल्स हैं, आप कुछ ग्रामर बुक्स में कंसल्ट कर सकते हो, या तो आप डिटेल में अगर मेरे लेक्चर्स को आप लेते हो ऑनलाइन में तो उसमें आपको पूरे प्रिंसिपल्स मैंने दिए हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे, या तो फिर आप जो है मुझसे आप रिक्वेस्ट डालिएगा, मैं आपको इसका वीडियो भी सेंड कर दूंगी। नाउ जस्ट सी अनदर रूल इज व्हाट, just here, no, just remember, sorry, can you pause here?